Shall I start? Yes, sir. Good morning to Yes. everyone. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Present here, myself is S.T. Namdar, HOD of Mechanical Department. All of you know very well. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of our new academic semester. My dear students, success has no shortcut, so be responsible and be sincere and be creative. And I wish that the year 2021 will be the brightest year of your life. Student, today I will start with new subject called estimation and costing. Estimation and costing subject plays a very important role in your career. In this subject, we come to know that how to make estimation and costing. Sir, sound cut को आ रहा sir. थोड़ा कटकट आ रहा है क्या? हाँ, तो एक मिनट. मुजम्मिल माइक बंद कर. बाकी के सब लोग अपना माइक अनम्यूट करो. सब लोग म्यूट करो. सब लोग म्यूट करो अपने माइक्स. अभी क्लियर है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Let us start chapter 1, introduction to estimation and costing. Oh yeah, pencil. That is chapter first, introduction to estimation and costing. What is estimation or define estimation? Estimation is the art of finding probable or likely cost of a product before it is actually manufactured. Means estimation means before starting manufacturing of any product, what we do the estimation. Whether after the completion of that product, we go under profit or loss. Yes, I am audible, na? आवाज क्लियर है ना? थोड़ा नेट का थोड़ा ऐसा होने वाला जी. नेट थोड़ा दूसरा नेट लगाते हैं. थोड़ा नेट का ऐसा होता है सर. आवाज क्लियर नहीं जा रही सर. अभी देखो, estimation is the art of finding probable or likely cost of a product before it is actually manufactured. अभी आ रहा है? नहीं सर, अभी थोड़ा कट जा रहा है. अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर आ रही सर, लेकिन एकदम क्लियर नहीं आ रही सर. थोड़ा स्लो बोलूं क्या मैं? नहीं तो हाँ सर, स्लो बोलो. What is estimation or define estimation? Estimation is the art of finding probable or likely cost of a product before it is actually manufactured. Means it is the art of finding the probable cost of a product. Means it is one type of art to finding the cost of product before it is actually manufactured. Estimation means it is the art of finding the probable or likely, means likely whether how much assumption, means एक जजमेंट रहता है. एक जजमेंट के ऊपर हम लोग एस्टिमेशन करते हैं बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले. इट इज एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्शन. हियर this will be approximate. The estimation is not accurate. It is approximate. It is based on the assumptions. It is approximate. It is based on the assumptions. Estimation. Sometimes estimation may be overestimation or underestimation. Sometimes what happens? Estimation may be overestimation or underestimation. It is approximate. That is 90% correct. It is having some errors. Estimation have some errors. What are the errors? The errors are avoidable errors and unavoidable errors. There are two types of errors. Avoidable errors and unavoidable errors. Avoidable errors. What are the avoidable errors? Suppose a estimator is doing estimation. At that time, what happens?
he will omit some data. When the estimator is doing estimation, he omits some data. That time what happened? The estimation goes wrong, or he left some specifications, or he left some main points, main items. That time what happened? The cost will be reduces. That will affect to the estimation, but this can be avoided. This underestimation can be avoided by proper care. Understand? Yes, all of you understood? Hello, Muzammil? Yes, sir. समझे नहीं estimate? And it is Yes, having sir. some errors, sir. avoidable. Yes, sir. Avoidable errors और unavoidable errors. Avoidable errors क्या है बोले तो ये एरर्स जो है ना, देखो जब एस्टिमेशन करता रहता है वो क्या करता है, सब डेटा ओमिट कर छोड़ता है। वो थोड़े गड़बड़ में क्या भी लिखते वक्त एक थोड़े आइटम्स उड़ा के छोड़ने का, कुछ स्पेसिफिकेशन उड़ा के छोड़ने का, तब क्या होता है उसका एस्टिमेशन क्या होता है, गलत होता है नहीं? तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ही शुड बी डू इन ए प्रॉपर केयर से करना। दैट टाइम वी कैन अवॉइड दैट एरर्स, दैट इज अवॉइडेबल एरर्स। और unavoidable errors क्या है बोलो? Unavoidable errors means suppose there is a strike in the company. What happened? There is a strike in company. At that time the production will be stop. Hello? हाँ, हेलो आ रहा है ना, आवाज आ रहा है ना, ऑडिबल ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो अनअवॉइडेबल क्या क्या है बोले तो देयर इज ए स्ट्राइक इन द कंपनी में स्ट्राइक हुआ तो क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। तो वो टाइम में क्या है, वो एस्टिमेशन रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी। जब काम करते रहता है तो मशीन क्या है, खराब हो गया, समझो कुछ भी हो गया, खराब हो गया, तो तब क्या होगा, तब भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो मशीन रिपेयर हुए तक टाइम लगेगा। तो और सम टाइम देयर इज ए फेल्योर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, समझो कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, तो तब क्या है, वो मैन पावर वगैरह चुप खाली बैठेंगे सब लेबर्स। तो ये सब क्या है, दीज आर द अनअवॉइडेबल एरर्स। अवॉइडेबल एरर्स क्या है, वो जो है वो प्रॉपर केयर करने से जो है वो हम एस्टिमेशन करेक्ट कर सकते हैं, अनअवॉइडेबल से इससे नहीं कर सकते। तो अगर ये केसेस में क्या होता है, तुम्हारा एस्टिमेशन गलत जाता है अनअवॉइडेबल एरर्स में। नेक्स्ट देखो, the person who done this called as a estimator. Who is done the estimation? The person who done this work is called as estimator. उसको क्या डेजिग्नेशन देते हैं हम लोग कंपनी में, एस्टिमेटर करके। Estimator. हाँ, एस्टिमेटर करके डेजिग्नेशन रहता है उसका। हाँ, जैसे प्लानिंग है ऐसा एस्टिमेटर। he is well qualified, he should be know the present market rates. Means estimator should be a well qualified, means he should be a graduate, that is BE or diploma. He should having a technical knowledge. उसको क्या है, टेक्निकल नॉलेज रहना, पूरा स्पेसिफिकेशंस मालूम रहना, अब मटेरियल्स के ग्रेड्स रहते हैं और यूनिट्स मालूम रहना, सेंटीमीटर, इंच, मीटर, ये सब उसको मालूम रहना। और हाउ टू कैलकुलेट द रेट्स, फॉर एग्जांपल फॉर वेट कैसे कैलकुलेट करने का है, वॉल्यूम कैसा कैलकुलेट करने का है। he should be know the all these things, और he should know the present rates of the market बोले तो क्या, अब मार्केट में क्या रेट चला है, समझो अभी स्टील है 50 रुपए चला है, एक 8 दिन के बाद में क्या होता है 55 रुपीज हो जाता है। तो he should know the rates, वो 50 रुपीज लेके ही कैलकुलेट नहीं करते बैठना चाहिए साल भर तक वही रेट से, तो साल भर रेट वेरी होते रहता है, तो वो सब कंसिडर करना। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, रॉ मटेरियल, अभी लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस। अभी रॉ मटेरियल तो जैसे बोला मैंने स्टील है, स्टील का रेट उसको मालूम है। लेबर, अब मार्केट में क्या लेबर चला है, अभी समझो लेबर है सोलापुर में भी लेबर मिल रहा है 10 रुपए को, अभी समझो हमारे बागलकोट में 8 रुपए है लेबर रेट, तो क्या करना, वो 8 रुपए वाला लेबर लेके आना है ना, तो जब चीप होगा ना उसका एस्टिमेशन। तो इस तरह उसको सब मार्केट में मालूम चला। आज फिटर है समझो, फिटर का सैलरी क्या है, हेल्पर का सैलरी क्या है, सुपरवाइजर का सैलरी क्या है, मैनेजर का सैलरी क्या है, ये सब सैलरीज वगैरह हर चीज मालूम रहना चाहिए। अभी ओवरहेड एक्सपेंसेस,
Overhead expenses means other than the direct material and direct labor, all the expenses comes under overhead expenses. सुन रहे हैं ना मेरा आवाज? हाँ सर। हेलो? Yes, sir. हाँ, आवाज आती है ना मुझे? हाँ 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 Yes, sir. हाँ. तो अदर देन ओवरहेड बोले तो क्या? अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ऑल कॉस्ट कम्स अंडर ओवरहेड्स. क्या क्या है ओवरहेड्स? देखो ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड्स क्या क्या है? ओवरहेड्स है फैक्ट्री एक्सपेंसेस. फैक्ट्री एक्सपेंसेस मींस overhead. Factory expenses. Factory expenses means the expenses incurred in the factory. For example, salaries of the indirect labor or cost of the indirect material. Indirect material बोले तो क्या समझो? अभी मशीन है, मशीन में तुम लोग लुब्रिकेंट ऑयल डाल रहे हैं, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल होता है. और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द दैट फैक्ट्री एंड इंश्योरेंस ऑफ द फैक्ट्री एंड सैलरीज पेड टू द वॉचमैन. वॉचमैन वगैरह रहता है ना, उसको जो सैलरी देते हैं, वो सब क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस. तो ये सब कंसीडर करना हो जब एस्टिमेशन करता है ना, तो ये सब पॉइंट्स कंसीडर करना. समझ में आ रहा है ना सब लोग को? मुजामिल हाँ सर। आ रहे हैं सब लोग? बाकी यस सर। हाँ करेक्ट हो. क्या भी रहे तो बीच में इंटरप्ट करो. हाँ मुझे लग रहा है तुमको सब सुनना आ रहा है करके, फिर भी कुछ भी रहे तो बीच में इंटरप्ट करो. हाँ अभी सेलिंग एक्सपेंसेस. ये सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है बोले तो, अभी ये here the selling expense, here the expenses incurred in for the selling. selling बोले सो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट. अभी तुम्हें टीवी में ऐड देखते नहीं? अभी संतूर साबुन हो गया, तुम्हारा कोलगेट का ऐड गिड हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज ए सेलिंग. वो सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे. और होर्डिंग्स देखते तुम्हें रोड के ऊपर, जो भी बोर्ड्स वगैरह लगाए रहते हैं, वो सब क्या है? वो सब सेलिंग एक्सपेंसेस. तो ये सब पकड़ना. हम लोग एक प्रोडक्ट बेचना है मुझे, समझो अभी रोटोमैक पेन बेचना है, तो रोटोमैक का उसका एडवर्टाइजमेंट होता है ना. पेन का, पेन का कॉस्ट है 5. हाँ पेन का कॉस्ट है 5 रुपए, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट कितना होता है ना? तो उसका जो बैनर्स है, उसका पैम्पलेट्स है, या उसका एडवर्टाइजमेंट, जो फिल्म स्टार को हम लोग शाहरुख खान को, सलमान खान को पैसे देते हैं ना एडवर्टाइज करने के लिए, तो ये सब क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस आता है. सैलरीज एंड सैलरीज पेड टू द वर्कर्स वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट. नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स हियर द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द ऑफिस. यहाँ पर क्या है? जो भी एक्सपेंसेस लगता है ऑफिस में, दैट इज कॉल्ड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस बोले तो एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द ऑफिस. whatever salaries we paid to the office staff, जो सैलरीज देते थे ऑफिस स्टाफ को, वो किसमें आता है? वो आता है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस में. जो भी सैलरीज देते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, क्लर्क है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो भी काम करते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ दैट जेरोक्स मशीन एंड दैट इज फैक्स मशीन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सब किसमें आता है? वो सब एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस में आता है. एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंसेस. नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. Distribution expenses means here the expenses incurred for the transportation of the finished product. After the completion of the product, we have to distribute that. जो भी प्रोडक्ट बनता है, suppose I have to send my finished product from Bijapur to Bagalkot. There we have to consider the transportation cost. कितना लगेगा मुझे बीजापुर से बागलकोट को अगर मैं यहाँ से मटेरियल भेजूंगा? तो these are all units or factors considered while doing the estimation. Next slide. Next we'll go to next slide. Any difficulties in this slide? No, sir. No, sir. Okay. Thank you. We'll go to next slide. No sir. हेलो.
Yes, we'll start second slide. Now I will give you a simple example. If you want to make a boat, if you want to make a boat, I am audible ना? सुना रहा है ना सब लोग को? हाँ सर सुना रहा Yes, है sir. रुखसार सुना रहा है ना? रुखसार, रुखसार, Yes, sir. हाँ क्या बंद करके गए? बैठे नहीं सामने? हाँ सर. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ. Now I will give you a simple example. If you want to make a boat, we have to calculate. अगर हम लोग को एक बोट बनाना है समझो तो क्या क्या कैलकुलेट करना है. फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ रॉ मटेरियल. हियर वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट. तो रॉ मटेरियल देखो अभी मार्केट में क्या चल रहा है रेट रॉ मटेरियल का. और एक बोट बनाने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए. 1 kg में एक बोट बनता है क्या 2 kg में बनता है. कितने बोट कितना समझो 1 kg में एक बोट बन रहा है तो हमको 100 kg के 100 बोट का ऑर्डर है तो इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा 100 kg होगा. तो 100 kg का क्या रेट है मार्केट में. तो ये कैलकुलेट करने का हम लोग दैट इज कॉल्ड एज ए रॉ मटेरियल कॉस्ट. नेक्स्ट है मशीनिंग कॉस्ट. अब मशीनिंग कॉस्ट क्या है. अब इसको इधर मशीनिंग करने का है यहाँ से यहाँ तक. पहला क्या करेंगे हम लोग एक रॉ मटेरियल निकलेगा ऐसा है ना. एक बार मिलेगा मार्केट से तो हमको इधर सब मटेरियल निकाल के ये शेप करेंगे. फिर बाद में इधर से मशीनिंग करेंगे. बाद में इधर क्या करेंगे इसको थ्रेडिंग करेंगे. ये सब थ्रेडिंग करेंगे. इसको इधर चाम्फरिंग करेंगे. इधर हेक्सागोनल हेड करेंगे. ये कौन कर सकता है ये सब. एक इंजीनियर कर सकता है ना. अभी जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता. इसके लिए जो एस्टिमेटर जो है ना वो क्वालिफाइड रहना चाहिए. उसको नॉलेज रहना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं. इसको टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं. इसको थ्रेडिंग ऑपरेशन बोलते हैं. तो हियर इन मशीनिंग कॉस्ट में क्या करते हैं. हियर वी कैलकुलेट द ऑल द कॉस्ट. फॉर एग्जांपल दैट इज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. मीन्स डायरेक्ट लेबर बोले तो क्या है जो लेबर एक्चुअली लेथ मशीन पे काम कर रहा है. और इनडायरेक्ट लेबर क्या है जो मशीन जो वर्कर है वो डायरेक्ट लेबर को हेल्प कर रहा है वो कंप्लीट करने के लिए जॉब. वो सब सैलरीज वगैरह पकड़ते हैं. नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट कॉस्ट. अभी जब बोट बनाते हैं तो बोट बनाए तो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर सब क्या होता है. अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है ना वो ये हो जाता है अनइवन होता है स्ट्रक्चर जो भी. क्योंकि मशीनिंग ऑपरेशन के बाद तो स्ट्रक्चर को इवन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं बोर्ड को लेके जाके सर्टेन टेम्परेचर में. जैसे नॉर्मलाइजिंग हार्डनिंग टेम्परिंग जो भी है वो सब. नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट. कितना लेबर लगता है तो लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग ये बनाने के लिए. नेक्स्ट क्या ओवरहेड्स. ऑलरेडी यू स्टडी ओवरहेड्स दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सैलरीज ऑफ द ऑफिस स्टाफ ये सब जो भी पड़े हैं वो सब ओवरहेड एक्सपेंसेस आएंगे. नेक्स्ट क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेम that is the advertisement cost and distribution cost means transportation cost. तो ये सब करने के बाद में क्या होता है हमको एक अमाउंट आता है. सब सपोज एक 100 रुपीज पड़ा समझो एक बोर्ड को कितना पड़ा हमको 100 रुपीज. तो इसको हमको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमको प्रॉफिट ऐड करने का रहता है. ये तो बन गया इतना है ना 100 रुपीज को. लेकिन अब कितना प्रॉफिट चाहिए कंपनी को. से कंपनी को चाहिए इसको कंपनी को चाहिए से 20% प्रॉफिट चाहिए. कंपनी को कितना चाहिए 20%. तो इसको क्या करने का इंटू 1.2 करने का. इसको कितना करने का इंटू 1.2. तो कितना आएगा 120 रुपीज होगा एक बोर्ड का रेट. समझे नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं. जो भी टोटल आएगा ना उसको क्या करेंगे हम थोड़ा प्रॉफिट ऐड करेंगे है ना. प्रॉफिट चाहिए तो बिना प्रॉफिट के तो काम करने नहीं बैठे है ना. तो एक 20% हाँ एक 20% प्रॉफिट ऐड सर करना बोले. वो हाँ सर 1.2 कई को ये करे सर इंटू. का तो एक 20% एक्स्ट्रा है ना. हाँ ये सर. 1 बोले तो 100 हुआ हाँ है ना. तो इसके लिए 1.2 बोले तो क्या है 120 हो गया इसका. 20% हो गया ना 1.20 1.2. हाँ 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 सर. हाँ तो ऐसा 1.2 किया मैंने. अभी समझो 30% बोले तो 1.3 करता हूँ डायरेक्ट आ गया है ना. नहीं तो ऐसा 30% बोले तो 30 रुपीज इसका. तो 100 प्लस 30 है ना. 30 के तो 130 रुपीज हो गया ऐसा. ठीक है अंडरस्टैंड हुआ. नेक्स्ट स्लाइड जाऊं मैं. Yes, sir. हाँ सर. ओके ओके.
Next slide is importance of the estimation. What is the importance? What is the role of estimation in the industry? In all organization, before starting actual production, in all organization, before starting actual production or filling up the tenders, estimation is done. Means before starting the production, in all organization, what we do the estimation and filling up the tender. Filling up the tender बोले तो क्या बोलो? किसी को पता है क्या टेंडर्स? सुने नहीं टेंडर्स वर्ड? टेंडर गवर्नमेंट के ये अप्लाई करते हैं तो सर हाँ वो टेंडर्स आते हैं ना, वो टेंडर छोड़ते हैं ना, बाद में हाँ, क्या sir, करते हैं? sir. हाँ टेंडर्स क्या है? टेंडर रिटर्न एग्रीमेंट Yes, sir. बिटवीन द कस्टमर एंड व्हाट इज टेंडर? टेंडर इज द रिटर्न एग्रीमेंट. एक रिटर्न एग्रीमेंट रहता है एक, तो बिटवीन द सप्लायर और कस्टमर का. उसमें क्या रहता है? उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं. उसमें लिखा रहता है वो तुम्हें मेरा वर्क कितना एक साल में ये वर्क कंप्लीट करना है. सपोज एक रोड बना रहा है 1 किलोमीटर रोड, तो वो बोलेगा 1 किलोमीटर रोड तुमको 2 महीने में कंप्लीट करने का है और ऐसा ऐसा मटेरियल यूज करने का है, ऐसा ऐसा सब स्पेसिफिकेशन देता है उसका. तो सब किसमें रहता है? वो सब जो है ना वो सब टेंडर में रहता है. तो ये एस्टिमेटर क्या है? वो स्टडी करता है. वो स्टडी करता है 1 किलोमीटर रोड चाहिए, वो रोड का विड्थ कितना है, उसमें क्या क्या यूज होता है. उसमें होता है बिटुमिन बोले तो डांबर, और उसमें सैंड यूज होता है. बाद में उसमें एग्रीगेट बोले तो पत्थर उस होता है. बाद में और क्या वर्क होता है? उसमें एक्सकेवेशन वर्क होता है, मीन्स खुदाई का वर्क. ये सब कैलकुलेट करने के बाद में 1 किलोमीटर रोड का वो कॉस्ट कैलकुलेट करता है. करके सपोज वो उसका कॉस्ट हो गया समझो 1 किलोमीटर का 100 रुपए. हाँ तो वो क्या करता है? इसको टेंडर कोट करता है वो. तो अभी समझो कैलकुलेट करता है 100 रुपए, और दूसरा क्या करता है? 120 करता है, 120, तीसरा 130, और फोर्थ क्या है? 90 करता है. तो किसको मिलेगा ऑर्डर? इसमें ऑर्डर किसको मिलेगा जी? 90 करे सर लिखना सर 90 हाँ 90 मिलता है ना. ये 30 करे वाले को क्या मिलता है? इसको क्या भी नहीं मिलता है नहीं, है ना. तो क्या है? एस्टिमेशन जो है देखो 100 भी हमें नियर थे, तो एस्टिमेशन क्या है? बहुत एक्यूरेट रहना हो. समझे नहीं? हेलो. Yes, sir. हाँ एस्टिमेशन है हाँ. बहुत एक्यूरेट रहना एस्टिमेशन. क्योंकि हमारा जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, समझो अभी एक्चुअल रोड बनाने का कॉस्ट कितना है? 120 रुपीज है समझो रोड 1 किलोमीटर का. हम लोग क्या करें? ये ऑर्डर करें, हमको मिला 110 रुपीज में एस्टिमेशन करके, तो हमें 10 रुपए लॉस हुए नहीं, है ना. 110 रुपीज लॉस हो रहे हैं ना हम लोग. Yes, sir. हाँ. तो ऐसा क्या होता है? एस्टिमेशन है बहुत एक्यूरेट रहना. तो इस तरह क्या करते हैं? हर एक कंपनी, हर एक गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक कंपनी एक टेंडर फ्लोट करता है. बाद में सब लोग मिलके उसे कोट करते हैं. कोट करने के बाद जिसका कम रेट रहता है ना उसको ऑर्डर मिलता है. नेक्स्ट क्या है? देयरफॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन इज नेसेसरी टू कंप्यूट इन द मार्केट. तो मार्केट में कंप्यूट करने के लिए बहुत एक्यूरेट एस्टिमेशन चाहिए. सपोज अब एक पेन मिल रहा है 5 रुपए का और हमें बना रहा है उसको 6 रुपए में, तो हम लोग 1 रुपए लॉस जाते हैं, है ना. तो इसके लिए क्या है? हमारा एस्टिमेशन करेक्ट है. हाँ. एंड टू बी श्योर वेदर द मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट. जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना वो प्रॉफिटेबल है क्या नहीं, वी हैव टू बी श्योर. ठीक है नेक्स्ट स्लाइड जाऊं मैं. कोई डिफिकल्टीज है क्या इसमें? Yes, कोई sir. प्रॉब्लम? हाँ नेक्स्ट हाँ. स्लाइड. Next slide is aims of estimation. Next slide is aims of estimation. What are the aims? First is to help the management to decide manufacturing of selling price. Manufacturing of selling price means जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो एक प्राइस बना के देता है एस्टिमेशन.
ये देखो, ये पर्टिकुलर बोर्ड को तुम लोग 10 रुपए में बना सकते हैं, 20 रुपए में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प इन फिलिंग अप द टेंडर्स। ऑलरेडी मैं बोला हूं, वो हेल्प करता है। एस्टिमेशन डिपार्टमेंट क्या है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को टू फिल द टेंडर। नेक्स्ट, टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स रिक्वायर्ड, मींस वो डिसाइड करता है ओवरहेड्स कितना कितना होना चाहिए। सपोज एक ऑफिस में एक्सेस हो रहा है ओवरहेड्स, सैलरीज वगैरह, तो वो बोलेगा यहाँ पर कम करो। सपोज लेबर है, अभी मैं बोला ना एक फिटर का रेट कितना है, 100 रुपीज है पर डे। वो बोलेगा नहीं, यहाँ पर तुम लोग रेट कम करो, 80 रुपीज वाला लेबर लेके आओ, ये करो। इस तरह से वो क्या करेगा, वो अपना एक पॉलिसी बनाएगा, बना के वो मैनेजमेंट को देगा टू रिड्यूस द ओवरहेड्स। क्योंकि अगर ओवरहेड ज्यादा रहेंगे, हमारा एस्टिमेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, हमको ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो हमारा बहुत इकोनॉमिक रहना, एस्टिमेशन कैसा रहना, बहुत इकोनॉमिक रहना, ओवर भी नहीं होना, अंडर भी नहीं होना। नेक्स्ट, टू डिसाइड वेज रेट्स ऑफ द वर्कर्स। ऑलरेडी बोला ना मैं, वेज रेट्स। अभी फिटर को, मशीनिस्ट को, टर्नर को, वेल्डर को क्या सैलरीज देना हम लोग दिए, तो ये ऑर्डर के लिए कितना कितना सैलरीज देना। सपोज मुझे वर्क मिला है बागलकोट में, मेरी कंपनी है बीजापुर में, तो मैं बागलकोट में जाऊंगा तो उसको रहने का करने का खर्चा अलग लगेगा ना, तो वो सब कंसिडर करने का। हाँ, नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी परचेज फ्रॉम द मार्केट or to be manufactured. The estimation department help the management whether the particular material to be manufactured or purchased from the market. Suppose the manufacturing cost of that product is more than the market price of the purchase. Suppose हमें बोल्ट में कुछ एक चीज, समझो मशीन में एक बोल्ट लग रहा है, हमको कितने लग रहे हैं, 5 बोल्ट लग रहे हैं समझो एक मशीन में। क्या वो 5 बोल्ट बनाना अच्छा है कि मार्केट से परचेज करना अच्छा है जी? रुखसार, हेलो रुखसार। Yes, sir. हाँ, अभी समझो, अभी क्या है, देखो, टू हेल्प द मैनेजमेंट को हेल्प करता है वो चीज, कुछ प्रोडक्ट्स बनाना है क्या परचेज। सपोज एक मशीन है, उसके अंदर एक 5 बोल्ट लग रहे हैं, हाँ, तो वो बोल्ट हम लोग मार्केट से परचेज करना है क्या बनाना चाहिए वो 5 बोल्ट को? Purchase करना sir. स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच मारा है, देखो, ये मत करो। हाँ, क्यों परचेज करना चाहिए? हाँ रुखसार, क्यों परचेज करना चाहिए? मुजम्मिल, टाइम बचता सर। क्यों परचेज करना टाइम चाहिए? मैनेजमेंट होता। हाँ नहीं, अभी देखो 5 बनाने के लिए कितना ज्यादा कॉस्ट होता है नहीं। 5 बनाने के लिए वो रॉ मटेरियल लेकर आओ, 5 का इकोनॉमिक नहीं होता, तो डायरेक्ट परचेज करे तो आसान होता है नहीं? हाँ, उसका अमाउंट भी बढ़ता है नहीं। हाँ sir. हाँ, तो क्या करना है उसके लिए, क्या है, हम लोग क्या है, ऐसा वो एस्टिमेटर क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट को। नहीं, तुम लोग अभी समझो एक साइकिल बना रहे, उसका टायर मत बनाओ, तुम टायर डायरेक्ट बाहर से परचेज करो। तुम उसका बेरिंग्स मत बनाओ, डायरेक्ट बाहर से परचेज करो। तो ये कौन हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए? सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर। देखो अभी क्लियर आ रहा है? हाँ सर, अब भी आ रहा क्लियर। हाँ, तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है। सपोज एक साइकिल है, साइकिल में देखो अभी उसमें ट्यूब रहता है, तो साइकिल बनाने वाली कंपनी ट्यूब भी नहीं बनाती है, वो क्या करती है, ट्यूब को सब ऑर्डर देती है वो, और बाद में टायर को एक अलग ऑर्डर देती है, और बेरिंग को अलग ऑर्डर देती है। मतलब इस तरह का क्या क्या है, टू हेल्प द मैनेजमेंट टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल शुड बी purchased from the market or to be manufactured. Next point देखो, to decide the investment required. To decide the investment required means एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। सपोज एक हमको प्रोजेक्ट मिला, सब तो एक घर बना रहे समझो, तो कितना घर को एस्टिमेशन लगेगा, इतना चाहिए, एक घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। तो इस तरह क्या है, इन्वेस्टमेंट वो बताता है, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, तो कोई क्वेरीज है, कोई प्रॉब्लम्स है क्या? नो सर। हाँ, क्या भी नहीं तो बोलो। तो No, आज sir. क्लास ओवर कर रहे हैं, कल फिर स्टार्ट करेंगे। देखो कल क्लास, और जो भी नहीं बैठे उनको हाँ, ठीक है बोलो। ओके सर। हाँ, जो भी नहीं हाँ? और मेरा यूट्यूब चैनल में मैं भेजता हूँ, और ये नोट्स क्या करता हूँ तुमको वो चैनल में भेजता हूँ, यूट्यूब चैनल में। और लिंक चैट में डाला हूँ, देखो वो लिंक है, लिंक में सब्सक्राइब करके देखो। उसमें तुमको ये भेजता हूँ, नोट्स भी क्या करता हूँ तुमको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, अभी जो भी हुआ क्लास का। ओके ठीक है, सर। ओके सर। हाँ ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू, कंक्लूड करेंगे। हाँ, ओके, 1 मिनट रुको, 1 मिनट को अटेंडेंस मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू, एग्जिट करो। ओके।